All right, students, let's start our lecture. Good afternoon to everyone. First of all, we will see that what we have completed within last lecture. Within last lecture, we have started with decision making and problem solving, within which we have seen what is problem solving, why it is important, and which are the phases or more precise stages of problem solving process, right? Which were the stages? That is intelligence stage, then it was design stage, choice stage, implementation stage, and monitoring stage. These were the stages in problem solving process. After that, we have seen that Herbert Simon has divided this decision making phases into 3 stages, that is intelligence, design, and choice. Then we have seen what is programmed and non-programmed decision, right? And within that, we have seen that programmed decisions are taken with the help of MIS, that is Management Information System, whereas non-programmed decisions are taken with the help of DSS, that is Decision Support System. Then we have started with the topic that is Decision Support System, that is 3.4, within which we have seen what is DSS, what is the significance of DSS, which are the different types of problems that can be solved with the help of DSS, then what DSS uses, right? That is 4 different things: analytical model, specialized database, decision maker judgments, and interactive computer based modeling process. Then we have seen 2 types of DSS, that is model driven DSS and data driven DSS, right? That we have seen. Then we have seen what is optimization model, satisfying model, and heuristic model. Or more precise, we can also say it as a heuristic approach. And by the end, we have seen characteristics of DSS. So these were the characteristics of DSS, which we have completed within last lecture. All right. And by the end, we have seen that what are the positive impacts and what are the negative impacts of DSS. So today, first of all, we will see capabilities of DSS. Again, I repeat, today we will start with the topic, which is a subtopic of decision support system topic of your syllabus, that is capabilities of DSS. Within that, first point is support for problem solving phases. Okay, we can say that the objective of DSS is to assist decision makers with phases of problem solving. Now, which are the phases of problem solving? कौन से phases थे? That is intelligence stage, design stage, choice stage, implementation stage, and monitoring stage. These were the stages which we have seen within problem solving process. So DSS का main objective यही होता है कि decision makers को हेल्प करे ताकि वो लोग ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस है, राइट, उसके साथ वो वर्क कर सके. नाउ ऑब्वियसली कोई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसी होती है कि जो एक प्रॉब्लम या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से एक फेज या फिर फ्यू फेजेस के साथ डील करती है, राइट. कोई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसी भी होती है कि सारे फेजेस के साथ वो डील करती है. But in short, we can say that by supporting all types of decision making approaches, DSS decision maker को ऐसी flexibility देता है that with the help of computer support, right, they can make decisions and they help in the activities that are performed within decision मेकिंग. मतलब डिसीजन मेकिंग जो भी एक्टिविटीज है उसके अंदर DSS डिसीजन मेकर को हेल्प करता है. दैट इज इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी कि कंप्यूटर का यूज करके कैसे ये डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज के अंदर वो हेल्प करता है. मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस हमने देखे थे, राइट, that 5 problem solving phases are supported within this DSS. बट इट डिपेंड्स कि कोई DSS ऐसी होती है कि जिसके अंदर एक या फ्यू फेजेस सपोर्ट होते हैं, कोई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऐसे भी होती है कि जिसके अंदर सारे फेजेस सपोर्ट होते हैं. ऑलराइट, now the second capability of DSS is support for different problem structures. Now you already know कि हमने देखा था that is structured problems होते हैं, unstructured problems होते हैं and semi structured problems होते हैं. So DSS
ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में हमें हेल्प करता है. Means we can say कि decisions can range from highly structured, more precise program to unstructured, or we can also say it as a non-program. मतलब ऐसे कोई भी टाइप के प्रॉब्लम होंगे उसके साथ डील करने के लिए, राइट, उसके रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए DSS हमें सपोर्ट करेगा. नाउ जो हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसके अंदर हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता होते हैं. प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी डिफरेंट एंटिटीज होती है या फिर कंपोनेंट्स होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो भी हमें पता होती है. बट इफ वी टॉक अबाउट सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, दैट इज नॉन प्रोग्राम, जिसके अंदर हमें नॉन प्रोग्राम डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है, वैसे प्रॉब्लम्स होते हैं दे आर मोर complex because they are unusual problems. They are unusual. They are the problems which are created through unusual situation, exceptional situation, right? इसीलिए वैसे प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, वैसे प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए DSS हमें हेल्प करेगा. Means if we talk about highly structured problem, then two decision support system will help us, and if we talk about unstructured problems, then also DSS will help us, right? Okay. Now कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के जो भी डेटा होते हैं, राइट, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी वो भी बहुत बार क्लियर नहीं होता है. बिकॉज जब प्रॉब्लम ही अनस्ट्रक्चर्ड है, राइट, तो उसके रिलेटेड जो हम डेटा गैदर करते हैं, राइट, वहां पे हमें बहुत बार ऐसा होगा कि पता नहीं होगा कि जो डेटा हमने गैदर किया है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, right? And the data might be of variety of formats. They can be in different formats and they are very difficult to manipulate. कभी ऑब्वियसली अगर हमें पता ही नहीं है कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, राइट, एंड ऑब्वियसली दे आर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, सो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनिपुलेट दोस डेटा, राइट? ओके, नाउ द थिंग इज दैट डिसीजन मेकर को कभी कभी ये पता नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है. अगेन आई रिपीट, कभी कभी ऐसा होता है कि जब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके साथ डील करने के लिए डिसीजन मेकर को भी नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए मुझे कौन से टाइप के रिक्वायरमेंट्स चाहिए. सो एडवांस में ये चीज पता नहीं होगी डिसीजन मेकर तो उस वक्त भी DSS हमें हेल्प करेगा. सो DSS किसके लिए हम यूज कर सकते हैं? टू सपोर्ट सोफिस्टिकेटेड, राइट, मतलब टू सपोर्ट सोफिस्टिकेटेड एंड इन अ बेटर वे कि कैसे हम अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए DSS डिसीजन मेकर को सपोर्ट करेगा. इन इफेक्टिव मैनर, एफिशिएंट मैनर के अंदर हम कैसे डिसीजन ले सके उसके अंदर डिसीजन मेकर को DSS हेल्प करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, if we talk about some unstructured investments, राइट, कि जहाँ पे पहले से पता नहीं होता है कि ओके हमें क्या कहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर किस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें किस हिसाब से प्रॉफिट होगा, राइट? सो ये सारी चीज, ये दीज आर द डिफरेंट सिनारियोज के जिसके अंदर DSS हमें हेल्प करता है. स्टूडेंट्स, कोई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना वो तो इतनी अच्छी तरह से प्रोग्राम किए गए होते हैं कि जहाँ पे कौन से शेयर्स बाई करने हैं, कौन से शेयर सेल करने हैं, उसके रिलेटेड जो भी ऑर्डर प्लेस करना होता है वो भी ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है बाय द पैरामीटर्स विच आर सेट बाय द ट्रेडर्स, राइट? ट्रेडर्स ने पहले पैरामीटर सेट कर दिए होंगे कि ओके मुझे ये पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए. उस हिसाब से ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होती है विच इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वो खुद डिसीजन लेता है कि मुझे कौन सा शेयर कब बाई करना चाहिए, कौन सा शेयर कब सेल करना चाहिए. और ये जो ऑर्डर प्लेस होता है वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है. वहां पे ट्रेडर को मैन्युअली ऑर्डर एंटर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं. स्टूडेंट्स, वी नो कि ये जो स्टॉक मार्केट होता है इट इज वेरी अनयूजुअल. कब कौन सी सिचुएशन उसके अंदर अराइज हो जाए हमें पता नहीं चल सकता.
लेकिन ऐसे मार्केट के साथ डील करने के लिए भी हम ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। एंड वहां पे वो सिस्टम खुद डिसीजन लेगा कि कब कौन से शेयर्स बाई करने हैं, कब कौन से शेयर्स सेल करने हैं, और वहां पे ऑटोमेटिक वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, राइट। So this is a very important thing students कि DSS though it is a computer system, तो वो भी हमें ये ऐसे डिसीजंस लेने में खुद डिसीजन लेता है और हमें वहां पे हेल्प करता है, राइट। दैट इज सपोर्ट फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्स. Another capability of DSS is it supports for various decision making levels. अब स्टूडेंट्स हमें पता है, आप लोग भी पढ़ चुके हो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे जो भी मैनेजर्स होते हैं वो एक ही लेवल के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, दे वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, टैक्टिकल मैनेजर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी मैनेजर्स वर्क करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस लेने की जरूरत हो सकती है, राइट. सो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, वो ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजर्स विच आर एट डिफरेंट लेवल्स, सबको वो हेल्प करता है. अगर ऑपरेशनल मैनेजर है तो डेली रूटीन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, डेली रूटीन रिलेटेड जो डिसीजन है उसे लेने में हेल्प करता है. अगर टेक्निकल मैनेजर्स है तो वहां पे उन्हें एनालिसिस टूल प्रोवाइड करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी तरह से सारी चीज प्लान कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके. एंड इफ दे आर अ स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स, तो वैसे मैनेजर्स को भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस के ऊपर एनालिसिस करने में हेल्प करता है. एंड ऐसे जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैन बी फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल के मैनेजर्स को वो हेल्प करता है. नो, इट हेल्प्स टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आपने स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, उसके अंदर आपको भी पता है कि देयर आर मेनी डिफरेंट लेवल्स और वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, राइट. तो ऑल द थ्री लेवल्स, दैट इज ऑपरेशनल लेवल, टेक्निकल लेवल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑल थ्री लेवल्स के ऊपर जो भी डिसीजंस लेने की जरूरत है, फिर वो डेली रूटीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज प्लानिंग करने की जरूरत हो या फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की जरूरत हो, सब जगह पे सारे मैनेजर्स को जो भी डिफरेंट लेवल्स पे है सबको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, राइट. नाउ द थिंग इज दैट हमें पता है कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स को हर रोज कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी. टेक्निकल लेवल जो डिसीजन मेकर्स होंगे ऑब्वियसली उन्हें हर रोज ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक बार कोई चीज प्लान कर दी है, राइट, उसके बाद उन्हें मॉनिटर ही करना होता है कि ओके, इफ दिस थिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू अवर प्लान और नॉट, राइट. और अगर वहां पे कोई चीज की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सिर्फ कंट्रोल करने की जरूरत है. और स्ट्रेटेजिक लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, मतलब एक बार जो डिसीजन ले लिया, मे बी फॉर अ डिकेड, दैट इज 10 years तक वही डिसीजन के ऊपर वो लोग वर्क करेंगे. मतलब हम ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम फ्रीक्वेंसी लेवल की बात करें, राइट, सो जो ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको डिसीजन लेने की हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और स्ट्रेटेजिक लेवल के मैनेजर्स होते हैं उन्हें डिसीजन लेने की लो फ्रीक्वेंसी होती है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं. और जो ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं वो हर रोज, दैट इज डेली डिसीजंस लेते हैं, दैट इज डेली रूटीन रिलेटेड वो लोग डिसीजंस लेते हैं. एंड टेक्निकल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो कम भी नहीं लेते हैं और ज्यादा डिसीजंस भी नहीं लेते, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली भी नहीं लेते और लेस फ्रिक्वेंटली भी नहीं लेते हैं. उनका डिसीजन लेना इज ओके. इट वी कैन से इट लाइक के वो लोग ऐसे, मतलब ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं कि जहां पे प्लानिंग करने की जरूरत है, राइट. एक बार प्लान हो जाता है देन ओके, जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं होती, जब तक वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो वहां पे दूसरा कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि कहाँ पे कौन से लेवल के एम्प्लॉयज कौन से लेवल के मैनेजर्स को डिसीजन लेने की कितनी फ्रीक्वेंसी है,
राइट. सो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू दैट उन्हें हेल्प करता है, राइट. और ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि वो सारे लेवल्स को वो हेल्प करता है, राइट. दैट इज सपोर्ट फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग levels, that is operational level, tactical level and strategic level. Okay. Another is support for different decision frequencies. मतलब ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत है तो मीन्स वन टाइम डिसीजन लेने की जरूरत है, ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ भी वो डील करता है. और रिपीटेटिव डिसीजन लेने की जरूरत है, वहां पे भी वो डील कर सकता है, राइट. मीन्स डीएसएस सब जगह पे जहां पे भी डिसीजन लेने की जरूरत है, सब जगह पे वो हमें हेल्प कर सकता है. That's why यहाँ पे टू डिफरेंट डीएसएस की बात की है, दैट इज एडहॉक डीएसएस एंड इंस्टीट्यूशनल डीएसएस. एडहॉक डीएसएस कब वर्क करेगा, मतलब कब हेल्प करेगा, और या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम डीएसएस को एडहॉक डीएसएस कब कहेंगे, कि ऐसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच इज कंसर्न विद द सिचुएशन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं विच इज कंसर्न विद द डिसीजंस दैट कम अप only a few times during the life of an organization. ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ में बहुत ही कम बार डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है. ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें हेल्प करता है, वी कैन से दैट टाइप ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज एडहॉक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. अगेन आई रिपीट, ऐसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ में बहुत ही कम बार डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है. ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए जो डीएसएस हमें हेल्प करेगा, दैट इज एडहॉक डीएसएस. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि ओके, अगर कोई डिपार्टमेंट में आग लग जाती है तो स्टूडेंट्स, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी आग नहीं लगती है, और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक बार आग लग सकती है. ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे एवरी ईयर आग लगती रहती है, नो. सो ऐसी सिचुएशंस होती है ना, वहां पे अगर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है और जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वहां पे हमें हेल्प करती है, दैट इज नोन एज एडहॉक डीएसएस. अनदर इज इंस्टीट्यूशनल डीएसएस. इंस्टीट्यूशनल डीएसएस मतलब ऐसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की जो ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने में हमें हेल्प करता है कि जो विद इन अ ईयर मोर देन वंस अकर होता है. मीन्स वी कैन से सेवरल टाइम्स अ ईयर, एक ही ईयर में बहुत बार डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है. वैसे सिचुएशन के साथ डील करने के लिए, वैसे डिसीजंस लेने के लिए जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें हेल्प करता है, दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, राइट. वी कैन से इट इज यूज रिपीटेडली ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में हम ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल डीएसएस को बहुत बार यूज करेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, XYZ प्रोडक्ट की सेलिंग ये पर्टिकुलर रीजन में क्यों कम है, राइट. अगर उसके ऊपर मुझे सर्वे करना है तो मैं ये इंस्टीट्यूशनल डीएसएस का यूज कर सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज वी कैन से कि वो अभी ही उसके रिलेटेड डिसीजन लेने की जरूरत है. एंड ऐसी सिचुएशन पूरे साल में बहुत बार आ सकती है. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ये सिचुएशन के साथ डील कर ली तो इट्स वेल एंड गुड, यहाँ पे खत्म हो गया. नो, XYZ प्रोडक्ट की सेलिंग ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्यों कम है, राइट. उसके ऊपर चलो सर्वे किया, डिसीजन लिया, थोड़े टाइम के लिए वहां पे वो सेल बढ़ भी गया, लेकिन फिर से वहां पे सेल डाउन हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है. मींस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन के जो पूरे साल में बहुत बार अराइज हो सकती है, और उसके साथ डील करने के लिए जो डीएसएस हमें हेल्प करेगा, दैट डीएसएस इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल डीएसएस, right. So these are two different types of DSS. We have bifurcated this different types of DSS according to the decision frequencies, right. Okay, we have already seen this diagram. Okay, all right students, so this is the end of subtopic, that is capabilities of DSS. डीएसएस की कैपेबिलिटी कौन कौन सी है कि हमें वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस के अंदर हेल्प करता है, दैट इज इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, राइट. वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज करके डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज के साथ डील कर सके. सेकेंड इज
इट सपोर्ट डिफरेंट प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्स, मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम से लेके अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम तक सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे, उसके साथ डील करने में DSS हमें हेल्प करेगा. दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ DSS. अनदर, इट सपोर्ट्स फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग लेवल्स. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स है, दैट इज ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल, तीनों लेवल पे ये हमें हेल्प करता है. And the last capability of DSS is its support for different decision frequencies, right? That is ad hoc DSS, जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लाइफ में वेरी फ्यू टाइम्स हम उसे यूज करेंगे या फिर वेरी फ्यू टाइम्स डिसीजन लेंगे. ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए एड हॉक DSS यूज करेंगे. और इंस्टीट्यूशनल DSS मतलब पूरे साल में बहुत बार हमें ये पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ डील करने की जरूरत है, तो वहां पे हम इंस्टीट्यूशनल DSS का यूज करेंगे, राइट? सो दीज आर द 4 कैपेबिलिटीज ऑफ DSS. ओके,